خاطر غزنوی صاحب کی ادبی کاوشوں کا ذکر اس وقت تک مکمل نہیں ہو سکتا جب تک ہم ان کے اس اہم نظریہ یا تھیوری کا ذکر نہ کریں کہ اردو زبان کی ابتدا دراصل ہند کو زبان سے شروع ہوئی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو ہے یہ کافی میٹیریل اس پہ ہے، یہ اس میں کوئی بریک نہیں آنا چاہیے، تو اس سے پہلے میں چاہوں گا کہ ہم جو ہے خاطر غزنوی صاحب کا کلام کچھ سن لیں، اور اب میں جناب ظفر یوسف زئی صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ خاطر غزنوی کا کلام پیش کریں، اور اگر وہ کیا کہتے ہیں منظوم اس میں کریں تو بہتر ہے، ورنہ تو ہے نا، میں نہیں آؤں۔ چلیے سب سے پہلے آداب اور ست سری اکال۔ کلام کچھ اس طرح ہے کہ پہلی محبتوں کے زمانے گزر گئے، پہلی محبتوں کے زمانے گزر گئے، ساحل پہ ریت چھوڑ کے دریا اتر گئے۔ پہلی محبتوں کے زمانے گزر گئے، ساحل پہ ریت چھوڑ کے دریا اتر گئے، تیری انا نیاز کی کرنیں بجھا گئیں، تیری انا نیاز کی کرنیں بجھا گئیں، جذبے جو دل میں ابھرے تھے شرمندہ کر گئے۔ تیری انا نیاز کی کرنیں بجھا گئیں، جذبے جو دل میں ابھرے تھے شرمندہ کر گئے۔ دل کی فضائیں آ کے کبھی خود بھی دیکھ لو، دل کی فضائیں آ کے کبھی خود بھی دیکھ لو، تم نے جو داغ بخشے تھے کیا کیا نکھر گئے، یعنی تم نے جو داغ بخشے تھے کیا کیا نکھر گئے۔ صدیوں میں چند پھول کھلے، صدیوں میں چند پھول کھلے اور ثمر بنے، صدیوں میں چند پھول کھلے اور ثمر بنے، لمحوں میں آندھیوں کے تھپیڑوں سے مر گئے، لمحوں میں آندھیوں کے تھپیڑوں سے مر گئے۔ شب بھر بدن مناتے رہے جشن مہتاب، یہ سنٹین کا ذکر نہیں ہے، کوئی اور شب کا ذکر ہے۔ شب بھر بدن مناتے رہے جشن مہتاب، آئی سحر تو جیسے اندھیروں سے پھر گئے، آئی سحر تو جیسے اندھیروں سے بھر گئے، زیر زبر اور نقطوں کا فرق ہے۔ شب بھر بدن مناتے رہے جشن مہتاب، آئی سحر تو جیسے اندھیروں سے بھر گئے۔ اور یہ بہت خوبصورت شعر مجھے پسند آیا۔ محفل میں تیری آئے تھے لے کر نظر کی پیاس، محفل میں تیری آئے تھے لے کر نظر کی پیاس، شکریہ۔ محفل میں تیری آئے تھے لے کر نظر کی پیاس، محفل سے تیری لے کر مگر چشم تر گئے، محفل سے تیری لے کے مگر چشم تر گئے۔ اور یہ آخری شعر ہے۔ قطرے کی جرتوں نے صدف سے لیا خراج، قطرے کی جرتوں نے صدف سے لیا خراج، دریا سمندر میں ملے اور مر گئے۔ قدر کی جرتوں نے صدف سے لیا خراج، دریا سمندر میں ملے اور مر گئے۔ پہلی محبتوں کے زمانے گزر گئے، ساحل پہ ریت چھوڑ کے دریا اتر گئے۔ شکریہ۔ بہت بہت شکریہ ظفر یوسف زئی صاحب، یوسف زئی پہ زیادہ زور ہے سر۔ اچھا جی، تو خاطر غزنوی صاحب کا کہنا ہے کہ ہند کو زبان کی اہمیت کو پوری طرح سمجھا نہیں گیا۔ ہند کو زبان صرف پشاور شہر کی زبان ہی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک عظیم زبان ہے جس میں دریائے سندھ کے دونوں کناروں پر بولی جانے والی زبانوں کے عناصر شامل ہیں۔ ان زبانوں میں گجری، گجراتی، پوٹوہاری، سرائکی اور سندھی شامل ہیں۔ خاطر غزنوی پہلے ادیب نہیں جنہوں نے یہ نظریہ پیش کیا، اس سے قبل مختار علی نیت اور فارغ بخاری نے بھی یہ نظریہ پیش کیا تھا کہ اردو زبان کی ابتدا دراصل ہند کو سے شروع ہوئی۔ اس موقع پر میں ناظرین کی توجہ اس امر کی طرف مبذول کرانا چاہوں گا کہ اردو زبان کی ابتدا کا مسئلہ اتنا سادہ نہیں۔ اس سلسلے میں متعدد محققین نے مختلف دعوے کیے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اردو کی ترویج میں
जिन इलाकों का ताल्लुक शामिल है उनमें पंजाब, सिंध, दक्कन, दिल्ली, मुल्तान और बिहार शामिल है। अब ज़्यादातर मुहक्किकीन इस नज़रिए से इत्तफ़ाक़ रखते हैं कि उर्दू ज़बान दिल्ली के आसपास बोले जाने वाली ज़बानों का इश्तराक है और ख़ास तौर पर खड़ी बोली ज़बान का। बहरहाल खातिर गज़नवी ने एक किताब लिखी जिसका उन्वान था उर्दू ज़बान का माखिज़ हिंद को। ये किताब 2003 में नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी ने इस्लामाबाद से शाये की। अब हम इस मौके पर फिर उनका कलाम सुनेंगे और क्या कहते हैं अपने काजी हबीब साहब। जी, काजी हबीब साहब से हम दरख्वास्त। आज असल में हमारे पास ये चलेगा आपका? हाँ, ये रख देंगे तो फर्क हो जाएगा। ये पता नहीं आवाज़ आएगी सही कि नहीं। इशारा फरमाइए। आप इसको खोलें। जी मैंने ऑन पे है। आवाज़ ही नहीं आ रही। एक मिनट रुकिए जरा। इसको ये टर्न ऑन नहीं हो रहा है। ये लगा नहीं है। ये कहाँ है? ये लगा इसमें लगा दीजिए। जी जी जी। जी काजी हबीब साहब। जी इशारा फरमाइए। जी है, आवाज़ आ रही है। बेहतर। माइक कहाँ है? स्पीकर के नज़दीक रख। माइक स्पीकर ये कहिए। जी इशारा। जी काजी साहब। ये गज़ल है, इसका मिसरा है बस्तियाँ हो गई बेनाम बस्तियाँ हो गई बेनाम निशान ऐसे तूफान ऐसे तूफान आप ठीक है। आए हैं यहाँ रातों रात बस्तियाँ हो गई इसको जरा सा में आता है कि ताबीर तुझी से पूछे जी में आता है कि ताबीर तुझी से पूछे हो गया ख्वाब हो गया ख्वाब तेरा जिस्म जवां रातों रात बस्तियाँ हो गई शाम हंगामा था खुशियाँ थी हंसी चेहरे थे शाम हंगामा
बस्तियां हो गई, हुस्न जलता रहा शमों की तपां खिलवत में, हुस्न जलता रहा शमों की तपां खिलवत में, हो गई मशअले, हो गई मशअले महताब, धुआं रातों रात, बस्तियां हो गई। और मुक्ता कौन इन कलियों की किस्मत पे न रोए खातिर, कौन इन कलियों की किस्मत पे न रोए खातिर, जिनको कर देती है, जिनको कर देती है तकदीर जवारा तो रात, बस्तियां हो गई बेनाम निशान रातों रात, ऐसे तूफान भी आए हैं यहाँ रातों रात, बस्तियां हो गई। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा। जी जनाब काजी साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब हम आगे चलते हैं। खातिर गजनवी ने उर्दू ज़बान से पठानों के ताल्लुक़ पर भी तहक़ीक़ की। उनका कहना है कि हिंदुस्तान में उर्दू की तजवीज़ में पठानों का बहुत अहम किरदार है। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान के साबिक़ सदर डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन और उनके छोटे भाई यूसुफ हुसैन खान, जो शायर भी थे, उनकी मादरी ज़बान उर्दू थी। उनका ताल्लुक़ आफरीदी कबीले से। अच्छा, अब हम इस मौके पर फिर गजनवी साहब का कलाम सुनेंगे और अब मैं फहमी अरोड़ा साहब को दावत देता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएँ और उनकी मशहूर गज़ल गो ज़रा सी बात पर बरसों के याद आने में सुनाएँ। फहमी अरोड़ा साहब। मैं जरा बात को जी जी बिल्कुल। अच्छा जी, एक मिनट। तो हाँ, तब तक किसी और को गो जरा सी बात पर बरसों के जाना। जी 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 जी। अच्छा, तो इसके बाद तो वो हमारे आपको बुला लो। आप तैयार हैं? ठीक है। अच्छा, तो अब मैं इनको तलत कदीर साहिबा को ऐसे दरख्वास्त करूँगा कि वो तशरीफ़ लाएँ और खातिर गजनवी का कलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं थोड़ा सा गिल्टी फील कर रही हूँ कि म्यूज़िक के साथ मैं ही सिर्फ हूँ जो कि परफॉर्म करती हूँ, और आज वैसे भी तरन्नुम से पढ़ने वालों की कुछ थोड़ी सी कमी हो गई है। जो लोग हमेशा पढ़ते थे तरन्नुम से, अब वो नहीं पढ़ रहे हैं, तो इस लिहाज से भी मैं थोड़ा सा गिल्टी फील कर रही हूँ। गिल्टी तो मुझे फील करना चाहिए। आज मैंने तरन्नुम और तहतुल लफ्ज़ को मिला के अपनी गज़ल तैयार की है, अपनी नहीं बल्कि खातिर गज़नवी की गज़ल, तो पेश करती हूँ।
कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरी कि इसको ठीक करें ज़रा सा, क्यों नहीं चल रहा है ये? मेरा ख्याल है कि ये वहाँ पर ठीक से लगा हुआ नहीं है, मेरा माइक काम नहीं कर रहा है। हाँ, वॉल्यूम थोड़ा सा तेज कर दो। हेलो, इसमें भी वॉल्यूम ज़रा कम है ना? ठीक है, ठीक है। इतनी से गैदरिंग के लिए काफी। कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में, कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में, बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में। कैसी चली है अब के हवा तेरे शहर में। क्या जाने क्या हुआ कि परेशान हो गई, क्या जाने क्या हुआ कि परेशान हो गई। एक लहजा रुक गई थी सबा तेरे शहर में, एक लहजा रुक गई थी सबा तेरे शहर में, एक लहजा रुक गई थी सबा। क्या जाने क्या हुआ कि परेशान हो गई, क्या जाने क्या हुआ कि परेशान हो गई। एक लहजा रुक गई थी सबा तेरे शहर में, एक लहजा रुक गई थी सबा तेरे शहर में। ना दुश्मनी का ढब है ना अब दोस्ती के तौर, ना दुश्मनी का ढब है ना अब दोस्ती के तौर, दोनों का एक रंग हुआ तेरे शहर में, दोनों का एक रंग हुआ तेरे शहर में, दोनों का एक रंग हुआ तेरे शहर में। ना दुश्मनी का ढब है ना अब दोस्ती के तार, ना दुश्मनी का ढब है ना अब दोस्ती के तार, दोनों का एक रंग हुआ तेरे शहर में, दोनों का एक रंग हुआ तेरे शहर में। शायद तुझे खबर थी कि खातिर था अजनबी, शायद
तुझे खबर थी कि खातिर था अजनबी, लोगों ने उसको लूट लिया तेरे शहर। लोगों ने उसको लूट लिया तेरे शहर में, लोगों ने उसको लूट लिया तेरे शहर में। शायद तुझे खबर थी कि खातिर था अजनबी, शायद तुझे खबर थी खातिर था अजनबी, लोगों ने उसको लूट लिया तेरे शहर में, लोगों ने उसको लूट लिया तेरे शहर में। बंदे भी हो गए हैं खुदा तेरे शहर में, कैसी चली है अब की हवा तेरे शहर में, कैसी चली है अब की हवा तेरे शहर में। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया तलत कदीर साहिबा।